Dear students, let us now begin with a new chapter, that is chapter number 16, Digestion and Absorption. After completing different chapters or different units like cell biology, plant and animal kingdom, we are now moving to the next unit, which is about human physiology. This unit comprises of about 7 chapters. Each chapter will be associated with a particular system, its functioning and different parts or different organs that are included in that system. So today we are going to begin with the first such chapter of human physiology, and that is digestion and absorption. Other than that, the respiratory system, the circulatory system, the excretory system, nervous system, endocrine system, all of them are included as a curriculum of standard 11. Reproductive systems will be studied in standard 12. So in this way, in human physiology, we are going to discuss about all the systems that are, all the organ systems associated with our body. So first we start with digestion and absorption. जब हम बात करते हैं digestion and absorption, तो इसकी सबसे पहली चीज क्या होती है? That is food. Food is the substance which is going to be digested and it is going to be absorbed. Now what is the requirement of the food? Why do we have food even in the breakfast, in the lunch, in the dinner, at all the times we have different types of food. And our food is also not a random distribution, but it is a balanced diet. It is a balanced diet which will be containing all the nutrients that will be essential for our body. So these nutrients will be broken down within our digestive system and will be absorbed by the cells. What do cells do after absorbing them? After absorbing these nutrients, the cells will be further breaking it down for the formation or the production of energy, which is stored in the form of ATP. And this is the energy which we utilize in various activities in our day-to-day life. So for that we first need to understand that what are the components of the food, how the components are broken down, which enzymes are essential, which organs are associated with it, and then we will talk about that how these substances will be absorbed within the cells. So let us now begin with our chapter, that is digestion and absorption. When we say food, food is the basic requirement of all living organisms. For all living organisms, any organism existing in the world, what is required? Food is a basic requirement. Why food is a basic requirement? Because the food contains essential nutrients, and these nutrients are carbohydrates, proteins and lipids. What are these essential nutrients? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. हम जो खाना खाते हैं राइट, वो फूड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स. फॉर एग्जाम्पल, द राइस विच यू ईट is a source of carbohydrates. The dal that you eat, the pulses which you eat are the source of proteins. And for making of the food, the oil that you use, the ghee that you use is a source of fats. And all these things are essential for our body. However, the proportion is different. Maximum in diet we require carbohydrates. Then in moderate amount we require proteins and fats. The requirement of these two substances is less as compared to carbohydrates. So what are nutrients? जो substances हमारी body में break down होके energy produce करते हैं, वैसे substances को कहा जाता है nutrients. And the method of uptake of the nutrients is called nutrition. जब हम बोलते हैं autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition means what? It is the mode of uptake
अपटेक ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट। हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स का सोर्स क्या है? द फूड दैट वी ईट, दैट इज अवर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी में जरूरत न्यूट्रिएंट्स की है। बट व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? Nutrients are those substances which within the cell break down and release energy. They help in growth and repair of our body. That is called nutrients. And the method of uptake of the nutrients, हम कैसे nutrients लेते हैं? Do we prepare it? तो हम autotrophic होंगे. Do we take it directly from someone? तो हम heterotrophic हुए. तो उसे हम क्या कहते हैं? Nutrition कहते हैं, modes of nutrition कहते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स तो हैं, बट देयर इज ऑल्सो moderate amount of vitamins and minerals are present. तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये मेजर प्रपोर्शन में है, पर इसके साथ साथ और क्या प्रेजेंट होगा? विटामिन्स आर प्रेजेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ minerals are present. Though vitamins and minerals are required in very small amount, but still their presence is very very essential in our diet. जैसे कि विटामिन डी है, दैट इज एसेंशियल फॉर योर बोन्स. विटामिन ई है, वो एसेंशियल है फॉर योर स्किन. विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर योर आईज, फॉर योर विजन, राइट. तो ऐसे ही हमारा विटामिन बी है, उसमें B6 है, B12 है. ऐसे विटामिन हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन बनाने में इंप्रूवमेंट लाते हैं. तो हर एक विटामिन का एक इम्पोर्टेंस होता है. तो हर एक विटामिन भी उतना ही एसेंशियल है, मिनरल भी उतना ही एसेंशियल है. दो उनके जो प्रपोर्शंस हमें चाहिए वो बहुत ही कम रहते हैं. दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट. ओके, द फूड ऑल्सो contains large amount of water that is essential for various metabolic activities, or you can say processes, and prevents us from dehydration. देखिए क्या लिखा है कि फूड के साथ साथ पहले तो हमने बात की कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स. फिर हमने कहा कि मॉडरेट अमाउंट में और क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन और मिनरल. ये दोनों चीजें मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट है. फिर फूड ऑल्सो कंटेन्स वाटर, मतलब हम जब भी खाना खाते हैं तो उसमें वाटर का प्रपोर्शन होता ही है. तो ये जो वाटर का प्रपोर्शन है, दैट हेल्प्स टू रेगुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन अवर बॉडी. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब क्या? क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई सब्सटेंस को ब्रेक करना हो तो देयर इज आइदर एडिशन ऑफ वाटर और देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर. ये चीजें होती है. जैसे कि हमने लाइसोजाइम्स में पढ़ा था दैट देयर आर हैविंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. हाइड्रोलाइटिक मतलब क्या? In presence of water only they will go for breakdown of the substances. So water is required for different processes occurring inside the cell. Okay, whether it is breakdown then also required, whether it is synthesis then also it will be required. So in this way water plays an important role at various places. Plus water also prevents us from dehydration, right? Loss of water, because हमारी body में osmoregulation, that is regulation of salts and water, is very very essential. Water is very important component which regulates your blood pressure also, which regulates your kidney function also. तो ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे water बहुत ही important है. इसलिए उसमें से तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? That it also prevents from dehydration. Next, when we mention these nutrients, so these nutrients are present in what? Food. So food is the source of energy and the organic matter. Organic matter मतलब यहाँ पे ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब ये जो सब्सटेंसेस की बात की है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये क्या है?
ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, राइट, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसलिए ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर टिश्यूज। सो नॉट जस्ट दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो प्रोडक्शन करेंगे ही, वो तो उनका मेन फंक्शन है, पर इसके अलावा दे ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। व्हेन इन अवर बॉडी एनाबॉलिक प्रोसेसेस आर मोर देन कैटाबॉलिक प्रोसेस, व्हाट हैपेंस, ग्रोथ अकर्स। तो एनाबॉलिक एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या है, फूड। डॉक्टर्स भी बोलते हैं दैट यू हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ food, you have a balanced diet, and then you will have a proper growth. Instead of junk food, you should prefer what, healthy food, a balanced diet that will be helping in the growth of the young children. So growth के लिए या तो कोई टिश्यू डैमेज है तो उसे रिपेयर के लिए भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स इतने ही एसेंशियल होते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमें मिले कहां से, फ्रॉम द मैक्रोमोलिक्यूल्स। इन्हें कहा जाता है Biomacromolecules cannot be used up by our cells directly. By our cells directly. Instead, they have to be broken down into smaller units. What has happened? बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि हम जो खाना खाते हैं वो सिंपल ग्लूकोज नहीं है। जैसे कि हम राइस खा रहे हैं तो राइस इज नॉट ग्लूकोज, राइस इज व्हाट, स्टार्च, एंड स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब वो क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन इज नॉट जस्ट वन एमिनो एसिड, इट इज सेवरल एमिनो एसिड्स इन अ चेन। तो जब हम ऐसे सब्सटेंसेस की बात करते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या कहा जाता है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो हमारे सेल्स डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। ऑब्वियस रीजंस है, उनकी साइज बहुत ही बड़ी होती है, राइट। सो दे कैन नॉट बी टेकन अप डायरेक्टली इनटू द सेल बाय डिफ्यूजन, या डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकते बाय सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के लिए क्या करना पड़ता है, दैट दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स, उन्हें ब्रेक करना पड़ेगा इनटू स्मॉलर यूनिट्स। एंड दिस प्रोसेस is done by our digestive system. Who does this process? Our digestive system. So digestive system, the digestive system converts complex macromolecules into simple absorbable form। क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन हो गया, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करता है इनटू सिंपल फॉर्म्स व्हिच कैन बी फर्दर एब्सॉर्ब। इसीलिए वर्ड यूज होता है सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग is known as, इस process is known as nothing but digestion। इसे हम क्या कहते हैं, digestion। So digestion is what? Converting
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन, और ये किया कौन करता है? इट इज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट फंक्शंस फॉर इट। सो डाइजेशन इज द प्रोसेस। डाइजेशन में क्या होता है? एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं और मैकेनिकल प्रोसेस भी है, क्योंकि टीथ जो है they are chewing the food, so that is the breakdown of the food is going to occur from the teeth. पर स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, उसमें एंजाइम्स रिलीज होंगे and these enzymes will be helping in the digestion. So it is both. Digestion is a mechanical as well as a biochemical process. Digestion जो है वो मैकेनिकल भी है और बायोकेमिकल। मैकेनिकल कब? जब टीथ उसे च्यू करते हैं तो मैकेनिकल कहा जाता है। बायोकेमिकल कब? जब एंजाइम्स रिलीज होते हैं और एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं तो बायोकेमिकल। सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। So digestive system, we have started with the digestion and absorption. हमने कहा that food is a basic requirement of all organisms, क्योंकि food में होते हैं nutrients, and these nutrients when absorbed by our cells, they help us providing energy which is required for day-to-day activities. So now let us begin with the digestive system. Digestive system का function क्या है? The function of the digestive system is breakdown of the complex macromolecules into the simple absorbable form. Complex substances को simple form में convert करना। जैसे कि proteins है तो proteins is a complex form, उसका simple form क्या होता है? amino acids. Polysaccharides हैं तो उनका simple form क्या होता है? a monomeric sugar like glucose, right? तो glucose है, fructose है, वो एक single sugar है तो उसको convert करना, ये फंक्शन रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन इज रिफर्ड एज डाइजेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इट कंप्राइजेस ऑफ, और यू कैन से इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनाल and associated glands. What is present? हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक इंक्लूड करती है एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकेंड थिंग इंक्लूडेड इज एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, राइट? तो एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात करते हैं तो दैट इज अ कंटिन्यूअस पैसेज विच इज हैविंग टू ओपनिंग्स। सबसे एंटीरियर साइड पे जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज द माउथ, एंड द पोस्टीरियर ओपनिंग इज रिफर्ड एज द एनस। मतलब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है क्योंकि डिस्टिंक्ट माउथ है एंड अ डिस्टिंक्ट एनस इज प्रेजेंट, सो इट इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अनदर थिंग इज दैट वी हैव आल्सो मेंशन्ड द टर्म एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं जिसमें फूड पास नहीं होता पर उनके जो सिक्रीशंस हैं, ये सिक्रीशंस बहुत ही एसेंशियल हैं फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड्स आर इंक्लूडेड इन द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स में फूड जाने नहीं वाला पर उनका जो सिक्रीशन है दैट विल बी एंटरिंग इनटू द माउथ व्हिच विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अनदर सच एसोसिएटेड ग्लैंड इज लीवर, right? Another such gland is pancreas. So we will be studying both the things differently. पहले हम बात करते हैं about the organs or the regions of the alimentary canal. So first we give the heading alimentary canal. So elementary canal आपने already पहले previous classes में पढ़ा हुआ होगा कि elementary canal में क्या include होता है। Alimentary canal includes your mouth, the next part which is called the pharynx, the third part which is called the esophagus, which is also known as the food pipe. Esophagus opens into the stomach opens into the intestine, and the intestines will be two, small intestine and large intestine, which will end up into the anus. This whole pathway
that is mouth, pharynx, esophagus. Then after stomach, intestine and anus. This all will be comprised in what? In the alimentary canal. ये सब कुछ include होगा alimentary canal में. So we first begin with that alimentary canal is complete with two openings. The anterior opening is the mouth and the posterior opening is the anus. मतलब एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग हो गए, एंटीरियर वन को हम माउथ कहते हैं और पोस्टीरियर ओपनिंग को एनस. दो ओपनिंग्स होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. राइट, हमने प्लैटीहेल्मिंथेस में पढ़ा था दैट दे हैव ओनली वन ओपनिंग. राइट, तो एक ही ओपनिंग होता है, उसे क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है. और ह्यूमंस में एक्चुअली सारे ही कॉर्डेट, सारे हायर ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है विद टू डिस्टिंक्ट ओपनिंग्स. So mouth, we first talk about the mouth. It is a slit-like opening bounded by lips on either sides. राइट, व्हाट इज माउथ? माउथ जो है वो एक स्लिट लाइक ओपनिंग है. एक स्लिट मतलब एक नैरो लाइन जैसी ओपनिंग है एंड इट इज बाउंडेड बाय लिप्स ऑन आइदर साइड. तो ये जो लिप्स होते हैं दे आर ऑल्सो कवर्ड बाय स्किन ऑन द आउटर साइड, बट ऑन द इनर साइड देयर इज प्रेजेंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. ओके, सो आई एम मेंशनिंग ओवर हियर लिप्स आर कवर्ड with skin on outer side and inside they are bound by mucous membrane. जब टर्म यूज होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है दैट इज अ थिन स्लाइमी लेयर दैट इज ऑब्जर्व. तो अगर आप लिप्स को अनफोल्ड करके आप देखोगे तो यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व अ पिंकिश कलर थिन लेयर एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इट ऑलवेज रिमेन्स वाटरी. वो कभी ड्राई रीजन नहीं होता. सो दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन द इनर साइड. नाउ दिस माउथ ओपन्स इनटू, और यू कैन से माउथ लीड्स टू और ओपन्स into the buccal cavity और oral cavity. अब आप माउथ ओपन करोगे तो माउथ के बाद जो पूरी कैविटी दिख रही है, दिस होल कैविटी इज नोन एज व्हाट? बकल कैविटी. राइट, जहां पे हम फूड को प्लेस करते हैं वो पूरी कैविटी जो है दैट इज द बकल कैविटी. ये जो बकल कैविटी होती है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? सो बकल कैविटी consists of, what does the buccal cavity consist of? It consists of the teeth, that is not just one, number of teeth, so I will mention. It consists of, नहीं तो आप कहोगे एक ही दांत होता है इसीलिए, number of teeth. It consists of a tongue which is a muscular structure and the third hard region that is the palate. जब हम बकल कैविटी की बात करते हैं तो बकल कैविटी में ये तीनों चीजें, राइट, विच आर द थिंग्स? टीथ प्रेजेंट होंगे, टंग प्रेजेंट है एंड द पैलेट. पैलेट जो होता है वो हम जो रूफ ऑफ बकल कैविटी को पैलेट कहा जाता है. रूफ ऑफ बकल कैविटी मतलब बकल कैविटी ओपन करो तो ऊपर की तरफ जो हार्ड रीजन आपको देख रहा है वो होता है पैलेट. एक्चुअली आगे की तरफ हार्ड होता है और पीछे की तरफ सॉफ्ट होता है, दैट यू कैन फील एंड दैट इज पैलेट, बोथ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट. वी विल डिस्कस लेटर ऑन अबाउट देम. सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द टीथ एंड इट्स स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे जो टीथ है
the teeth are present in a socket of jawbone. हमारे जो टीथ है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट है, और वो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर किसका है? जॉ बोन का स्ट्रक्चर है, राइट? वी हैव जॉ बोन्स बोथ अपर एंड लोअर, जिसे कहते हैं मैक्सिली एंड मैंडिबल्स. तो ये जो जॉ बोन है उसमें सॉकेट्स है जिसके अंदर टीथ जो है वो एम्बेडेड है. टीथ आर एम्बेडेड इन, एम्बेडेड मतलब फंसे हुए हैं अंदर की तरफ, राइट? तो एम्बेडेड कहां पे है? इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन. दिस arrangement of teeth is called thecodont. This arrangement of teeth present in the socket, teeth present in the socket of jawbone, इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? थिकोडोंट. देखो ये स्टूडेंट्स ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस एनी हाउ. सो व्हाट इज थिकोडोंट? टीथ एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉबोन इज नोन एज थिकोडोंट. और ये जो है वो से थिकोडोंट जो है, ऐसे ही रैबिट्स के अगर आप टीथ देखोगे तो रैबिट्स के टीथ जो होते हैं वो सॉकेट में नहीं अरेंज होते, इंस्टेड एक लेयर है जिसके ऊपर टीथ सिर्फ अटैच रहते हैं, राइट? दे आर नॉट प्रेस्ड विद इन, इंस्टेड दे आर प्रेजेंट ओनली सुपरफिशियली अटैच. सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एक्रोडोंट. मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर टीथ का अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है, इसलिए स्पेसिफाई करना पड़ता है दैट ह्यूमंस में कैसा अरेंजमेंट होता है? थिकोडोंट टीथ. ओके, नाउ mostly all mammals develop their teeth twice in lifetime. मतलब एक लाइफ टाइम में मैमल्स जो होते हैं, मोस्टली सारे मैमल्स, अगर ह्यूमंस की बात करें तो भी, they will be developing teeth for 2 times. The first one are milk teeth. मिल्क टीथ को और भी कहा जाता है टेम्पररी टीथ, और they are also known as deciduous teeth. Milk teeth, temporary teeth or deciduous teeth. Okay, and then they develop secondly permanent teeth. This is known as diphyodont. This type of dentation is called diphyodont. Diphyodont means developing the teeth twice in the lifetime. लाइफटाइम में जब टीथ 2 बार डेवलप होते हैं, मतलब पहले मिल्क टीथ, फिर वो गिर जाते हैं एट एन एज ऑफ 6 एंड देन आफ्टर दे ग्रो न्यू विच आर द परमानेंट वन. तो उसे क्या कहा जाता है? डाइफियोडोंट. थिकोडोंट क्या था? अटैचमेंट ऑफ द टीथ इनटू द सॉकेट, और एम्बेडेड टीथ इनटू द सॉकेट is known as thecodont, whereas teeth developed for twice in lifetime is called diphyodont. Humans में सारे जो teeth होते हैं वो similar नहीं होते. We have different types of teeth. So presence of different types of teeth is called heterodont. हेटेरोडोंट डेंटिशन मतलब जो टीथ होते हैं वो हमारे अलग अलग होते हैं. कौन से टीथ होते हैं हमारे पास? वी हैव इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट. इंसीजर जो आगे के होते हैं, जो सबसे पहले हैं, दैट इज फॉर बाइटिंग, तो इंसीजर्स होते हैं. फिर जो हमारे पास शार्पन थोड़े हैं, दैट इज द कैनाइन्स, दैट इज फॉर टेयरिंग द मीट अपार्ट. और प्रीमोलर्स और मोलर्स जो होते हैं वो पीछे होते हैं एंड दे हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड. सो फूड ग्राइंडिंग
or mainly chewing is the function of premolars and molars. But if you want to bite something, तो सबसे आगे के teeth काम आते हैं incisors. Tearing the flesh apart, flesh खाते हैं, meat खाते हैं, तो उस केस में canines helpful रहते हैं. इसलिए आपने देखा होगा कि carnivore organisms have well developed canines. Okay, so human dentition is including 3 terminologies. Which 3? Thecodont, Diphyodont and Heterodont. Teeth embedded into the sockets is called thecodont. Developing teeth twice in the lifetime is called Diphyodont, and presence of different types of teeth is called Heterodont. Okay. Diphyodont में और एक टर्म आता है मोनोफायोडोंट. तो जिन ऑर्गेनिजम्स के पास लाइफ टाइम में एक ही बार टीथ डेवलप होते हैं उन्हें कहा जाता है मोनोफायोडोंट. 2 बार डेवलप होता है इसीलिए डाइफियोडोंट. ओके, नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज फेरिंग्स, इसोफेगस एंड स्टमक.